and welcome back students. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University, Bachelor's in Computer Science, second year, semester 4, data structures. We are learning linear data structures. We have completed stacks, arrays. In today's video we are going to begin with the linear data structure, that is a queue. So basically, as we were discussing, queue is a linear data structure, and there are, in the starting videos, that is in starting classes, we have discussed type of data structures where we have studied that there are basically two types of data structure. One is the linear one and the other one is non-linear. So inside the linear category we have discussed array, stack, linked list, and this one is queue. Queue is a non-primitive linear data structure in which an item may be deleted from one end called the front and inserted at the other end called the rear. So we all know this. That whenever we are standing in a queue, say the queue of a ticket counter, or we are at a doctor's clinic, or we are at the form submission counter, whenever we are in a queue and a new person arrives, that person always stands at the back. So the insertion always takes at the end. And whenever if we are in the queue and we have reached the counter, we submit the form or whatever we have to do, we have done, we leave the queue. That is, deletion takes place at the front. So we can call it as a FIFO, first in, first out. The person who has entered first in the queue will be the person to leave the queue first. This can also be called as FCFS, that is first come first serve, or LILO, that is last in last out. बिकॉज जो एलिमेंट पहले क्यू में आया है वही एलिमेंट सबसे पहले क्यू को छोड़ के बाहर जाएगा. वंस एन एलिमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड इट इज़ नो मोर एक्सेसिबल. एक बार कोई एलिमेंट क्यू में चला गया है क्यू से बाहर, तो उसे एक्सेस किया नहीं जा सकता. क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अरेज ऑल्सो और बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट ऑल्सो, एंड इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि O1 फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एन आइटम. तो एक कांस्टेंट टाइम में एक वन टाइमर लगेगा इंसर्शन करने के लिए भी, डिलीशन करने के लिए भी. ये एक पिक्टोरियल ये है सिनारियो दिखाया गया है पिक्टोरियली क्यू का, जहाँ पे 4 एलिमेंट्स है क्यू में, A B C and D, A C B and D, जहाँ पे फ्रंट में A है, रेयर पे D है. एंड एज यू कैन सी द मार्कर्स शो that the deletion will always take here and insertion will always take place here, that is at your rear end. So in the queue shown above, item A is at the front end of queue while item D is at the rear end of queue. तो आइटम डी रेयर पे है एंड आइटम ए कैन बी डिलीटेड डायरेक्टली. आइटम ए को तो आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो, बट आइटम डी कैन बी डिलीटेड ओनली आफ्टर रिमूवल ऑफ आइटम ए सी बी. ए को तो डिलीट कर सकते हो, बट डी को डिलीट करने के लिए पहले ए सी और बी को डिलीट करना इट इज़ इम्पोर्टेंट. or primitive or basic or native operations on queue. So now we will discuss what are the different types of operations on queue that you can do. So by now I hope you have understood what is a queue. Now we are going to discuss some operations on queue. ठीक है, फॉलोइंग आर सम ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू. पहली बात हम चेक कर सकते हैं कि क्यू फुल है या नहीं है, क्यू एम्प्टी है या नहीं है. चेक वेदर क्यू इज़ फुल, चेक वेदर क्यू इज़ एम्प्टी. फिर एडिंग एन आइटम एट दी रेयर एंड ऑफ क्यू, एंड फिर रिमूव एन आइटम फ्रॉम द front, that is your front of the queue. So these are the 4 types of operations that you can do on queue, beginning with the very first operation, that is your, what is it, demonstration of how queue will be represented after pushing 2 elements x and y in queue after removing 2 elements from the queue is given below. ठीक है, तो ये demonstration दिया गया है यहाँ पे. पहले तो क्यू कंसिडर इनिशियली और क्यू इज़ एम्प्टी. आप इनिशियली ये मान रहे हो कि आपका क्यू कम्प्लीटली एम्प्टी है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट इज़ 0, रेयर इज़ 0, सो ऑब्वियसली द क्यू इज़ एम्प्टी. अब आफ्टर द इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एक्स, क्यू बिकम्स, अब सपोज आपने एक एलिमेंट एक्स इंसर्ट कर दिया इस क्यू में, तो क्यू क्या बन गया, क्यू बन गया फ्रंट भी 1, रेयर भी 1 और 1th पोजिशन पे एक्स. यही फ्रंट है, यही रेयर है, दैट इज फ्रंट इज ऑल्सो 1 एंड रेयर इज ऑल्सो 1. अब आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट वाई, क्यू बिकम्स, अब आपने एक वाई एलिमेंट को और इंसर्ट किया. इंसर्शन कहाँ प्लेस लेगा, रेयर के बाद, तो अब नया रेयर ये बन जाएगा, वाई इंसर्ट हो जाएगा, दैट इज योर फ्रंट विल रिमेन 1 बट योर रेयर विल बिकम 2.
After removing, now removal process begins. After removing an element, q becomes, अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया, दैट इज x को रिमूव किया, तो क्या होगा, ये जगह खाली हो जाएगी और आपका फ्रंट भी 2 रहेगा और रेयर भी 2 रहेगा. द x हैज़ बीन रिमूव्ड, सो नाउ द न्यू फ्रंट इज 2 नॉट 1. दैट इज योर एलिमेंट y. ना अगेन आफ्टर रिमूविंग एन एलिमेंट, और आपने y को भी रिमूव किया तो फिर फ्रंट भी 0 और रेयर भी 0, तो दिस इज द ट्रेस ऑफ अ q. I hope you have understood till this point. Now this is what is happening. रेयर अपडेट कर लेता है खुद को, अगर उसमें इंसर्शन करना हो तो रेयर हो जाता है रेयर +1. पहले रेयर ये था, नए इंसर्शन के लिए नया रेयर, पुराना रेयर +1. दैट इज इट. सो बिफोर वी बिगिन विद द एल्गोरिथम, आई होप यू हैव very much thorough with what is front and what is rear. So I begin with the very first algorithm, that is your an algo to insert the element in Q using array implementation. We are using the array implementation to insert an element into our Q. So where Q is the name of the array, front position of the front item in the Q, rear position of the rear item where element will be inserted. तो front क्या है, front item की पोजीशन है, और रेयर क्या है, रेयर आइटम की पोजीशन है. आइटम क्या है, एन आइटम इज टू बी एडेड एट द रेयर एंड ऑफ क्यू. आइटम क्या है जिसे हमें ऐड करना है, वो भी एट द रेयर एंड ऑफ क्यू पे. मैक्स क्यू क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स दैट कैन बी केप्ट इन क्यू. मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, क्योंकि ये डिफाइन करता है हमारा मैक्स क्यू. अगेन जब भी हम एल्गोरिथम आज तक स्टडी कर रहे थे तो वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू सी कि एल्गो का नाम फॉलोड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द एल्गोरिथम. ओके, तो क्यू इंसर्ट में क्या क्या लगेगा, ऑब्वियस एक क्यू लगेगा, एक फ्रंट पॉइंटर लगेगा, एक रेयर पॉइंटर टू डिफाइन द रेयर, एक आइटम लगेगा और एक मैक्स क्यू जो कि बताएगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है क्यू की. देन अगेन हर एक पैरामीटर का मीनिंग एक्सप्लेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू आर फिनिश विद दिस, यू कैन बिगिन विद योर एक्चुअल एल्गोरिथम विच वी विल वेरी सून सी हियर. ठीक है, तो ये है हमारा एक्चुअल एल्गोरिथम दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, तो इनिशियली यू विल चेक वेदर योर क्यू इज एम्प्टी. व्हाट यू आर गोइंग टू सी, वेदर योर क्यू इज फुल. यू आर गोइंग टू चेक क्यू इज फुल इफ रेयर और मैक्स क्यू मैच हो रहे हैं. ठीक है, इफ रेयर एंड मैक्स क्यू आर सेम, तो ये क्या डिनोट करता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ही हमारी रेयर है, मतलब रेयर हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. देन यू आर गोइंग टू राइट ओवरफ्लो. ओवरफ्लो का मीनिंग क्या होता है, ओवरफ्लो मतलब सपोज आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर था जो कि पूरा फिल्ड अप है वो ग्लास. ठीक है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मालूम, तुम उसमें और पानी पोर कर रहे हो, तो उसमें जब आप और वाटर पोर कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो वाटर ग्लास में न जाके ओवरफ्लो होके बाहर गिरेगा. यही सिनेरियो यहाँ पे होने वाला है. एक क्यू था जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे था, उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी तक के एलिमेंट्स फिल्ड थे. अब आप और एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी, दैट इज़ योर ओवरफ्लो. एंड इन दैट कंडीशन आप इंसर्शन कर सकते हो, नो नॉट एट ऑल. सो यू विल जस्ट रिटर्न एन एंड इफ़. ठीक है, इफ़ कंडीशन को एंड कर दोगे. बट ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ना, मतलब अगर रेयर मैक्स क्यू है तो, बट अगर रेयर मैक्स क्यू नहीं है तो कुछ और होगा. चलो वो भी चेक कर लेते हैं. बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑपरेशन. ये हमारी क्यू थी, यहाँ पे एलिमेंट्स, इसकी मैक्स क्यू कैपेसिटी 5 है. यू कैन सी मैक्स क्यू इज़ 5. क्यू की मैक्स क्यू कैपेसिटी ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है दैट इट इज़ 5. ठीक है, योर फ्रंट इज़ 1 एंड योर रेयर इज़ 5. Now where are you going to insert the new element? Do you have any space left? No. So you are going to give a message overflow. That is what is the explanation of this first point. Next, अब Q मान लो पहले से खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था. If Q is initially empty, then front will be null and rear will also be null. तो आपका front क्या है, null है, और rear भी null है, जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा था पहले. तो ये पूरा Q है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपका F इज़ 0, सॉरी, एंड R इज़ ऑल्सो 0, और मैक्स Q कितना है, वो 5 ही है, मतलब आप इसमें 5 एलिमेंट्स डाल सकते हो.
तो आफ्टर एग्जीक्यूशन इसमें फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट आ जाएगा और आपका फ्रंट और रेयर अपडेट हो जाएगा, फ्रंट बन जाएगा 1 और रेयर भी बन जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे इफ फ्रंट इज नल एंड रेयर इज नल तो नया फ्रंट नया रेयर हो जाएगा 1 एंड एंड इफ। अब थर्ड पॉइंट है कि मान लो आपके पास एक नॉर्मल क्यू था। एक नॉर्मल क्यू का मतलब है उसमें ना वो पूरा खाली था ना पूरा फिल्डअप था, वो बेसिकली कुछ एलिमेंट्स थे उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल में दिख रहे हैं। तो ए बी सी, तो आप यहाँ पे इंसर्शन करोगे क्योंकि इंसर्शन इन क्यू ऑलवेज टेक्स प्लेस एट दी एंड, तो 4 पे इंसर्शन होगा। बट रेयर की वैल्यू क्या है अभी, रेयर इज 3 but insertion takes place at rare. So before inserting you have to update your rare. So your new rare is rare plus 1 and in your new rare position you are going to insert the element that is, आप पहले रेयर को बनाओगे 4, पहले आपका एफ फ्रंट 1 है और रेयर 3 है, बट एग्जीक्यूशन के बाद फ्रंट 1 और रेयर 4 हो जाएगा और फोर्थ पोजीशन पे डी आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज रिटन हियर कि अपडेट रेयर पोजीशन, रेयर को रेयर प्लस 1 करो और क्यू ऑफ रेयर में फाइनली अपना आइटम डाल दो, रिटर्न। So simple. So this was what is this insertion into an queue using array implementation. Now in the next video obviously we will learn the deletion, so please keep studying. Thank you so much.